Okay, so hope I'm visible to everybody. I welcome Sai, Garima ji, Miral ji, Padma ji, Mini ji, Chetna ji in today's workshop. So today we're going to discuss about the jamun. Definitely we're going to understand the quality of it, quantity of it, like quantity like suggested, when you can have it, what is the action on your body, so that you could able to have it in a right proportion and on the right time. So anybody know when this comes in a season? What is the season of jamun? Anybody? Autumn? Summer? Yeah. Okay, summer season. So okay, let me okay. So we'll understand the importance of the jamun, and when we talk about which season it is coming. So once we understand the quality of the jamun, definitely it will going to get clear when this comes. So let's understand, like, let's go it to for the problem statement, mission statement. This is important to recall because we have to maintain everything in moderation, everything in the, I would say, wait a minute, yeah, in the proper quantity and the moderation. So that's where we have to understand again. For those who are new to the community, the problem statement is current healthcare system is facing challenges due to the complexity and confusion within the industry, and our mission is to build world largest society of Ayurvedic lifestyle. Our vision is to collectively empower every human on this earth to live meaningful and a disease-free life. But here, the some of the changes even that we have nowadays, like astrology, Vastu, again, numerology, anything that is coming in the community, that's a base which supports to Ayurveda. Okay, we are using the base in order to so that we can support the Ayurveda. Okay, so Ayurveda is a foundation of this community where we work on the principle personalization, empowerment, learning and implementation, and health and well-being, where the principles is based on the ancient science, and we focus on the personalization. Here, when we see personalization is about your prakriti, we empowered with the right information so that you can use this information for your betterment. In this community, we focus on the learning and the implementation part. So maybe when I generally talk about this Friday workshop, definitely I'll going to keep it for the learning purpose only from the next time, so that the people may not wrongly use the things. Okay, so the purpose will going to be learning from now, and the fifth is the health and the well-being. Okay, and that is what is the values of this particular community. So this current session will going to be a 90 minutes from now, including Q&A session. You take notes, and at the end of the session, we're going to have the Q&A session. All right. So as I've said, today's discussion is on jamun. So that is also called as Indian blackberry. Before that, let's understand again the concept, like what we are doing here in Arogini. We don't want to go excess in something and not under something. We want it to be in a moderate. That's where health lies. So doing excess of anything is not good. Even we talk about the jamun, we'll see the various health benefit of it, but definitely not consumption in excess. Everything will be in the moderation. Okay. So that's where in Arogini we focus on the moderation of the things. Okay. Okay. Saying this, let's get start directly with our slide. So the jamun, let's understand the quality of it, and you'll also able to understand when it is useful for. Okay, please share some of our Indian ancient raw fruits. Any raw fruit is not suggested except your bel phal. Okay, so why you're going on the raw fruits again? Okay, anyway, the jaw fruit. When we talk about the quality of the ripened jamun, it's a lagu. It's a light to digest. Okay, it's not heavy to digest. It is light to digest, and again dry in nature. So definitely, since it is dry in nature, it will increase the vata in the body. So for vata prakriti people, this is not much beneficial. So if they wanted to eat, they can have after meals, like end of the meal, they can have it. But again, jamun is the only fruit which increases more vata in the body than any fruits. So vata prakriti, they have to be very careful when they consume this jamun. Okay. The rasa of this, it is kashai, astringent, madur, that is sweet, and sour in taste. So it has a three taste.
It starts with the estrogen taste. That's why it is good for the diabetic patients. Again, the sweet taste secondary, and third is that sour taste. But dominancy here is the estrogen taste. Same it goes with the seed of the jamun. It has a katu vipak. That means, it has the property of holding it. So it helps to hold. That's why its vipak is the katu vipak. The virya is cold. It is cold in nature. Again, the taste, again the potency. These are the two main things here which increases the vata in the body. Okay. So dosha effect, it increases the vata but decreases the pitta and kapha. So for which prakriti jamun is most useful for? What do you think? For which prakriti jamun is most useful for? So jamun, anybody? Kapha? Yes, right, Madisha ji. It's a pitta and kapha. So neither pitta, neither kapha. If you have the both, the dominancy of pitta kapha body type of kapha pitta body type, in that way, this will going to helpful. If you talk about the vata kapha prakriti, definitely it will give the more problem. Okay, the prakriti is dominated with vata and the kapha, it will create a more problem for them. So the fruit pulp is you can have just 10 to 20 ml, not 100 to 200 ml. And again, the powder is just 1 to 3 grams. Again, it depends upon the prakriti, your body type, the condition. I'm not going to suggest anything without understanding your body type. Okay, here. But 1 to 3 gram is somewhere suggested to consume in the condition. Okay. So this is how the jamun looks like, the quality, quantity, the quality wise, the nature wise. Okay. So what we have to understand here, it increases the vata. So vata people should be better to consume in a moderation. So when we get this end of the summer season and early rainy season, okay, that's where the autumn season comes. Okay, I guess it was Garima ji who answered. So yes, somewhere there the right season comes for the jamun. Okay, so the burning sensation of the autumn season, okay, will be taken care by the jamun. Okay, and that's where vata is also not high. The pitta is high in the autumn season. Okay, and you also see after rainy season and in between the autumn season. That's where also you can see. But see, as per your location, you'll definitely going to find it locally. So this is about the jamun. In any other, like, I would say, season that is not suitable, like let's say winter season, definitely already you need some lubrication in your body. That's where dryness is not required. Again, eating jamun in winter season will create lots of challenges. Okay, so let's understand about it. It is absorbent, useful in malabsorption syndrome and diarrhea. Those who have the Pittach IBS or the diarrhea syndrome or the Pitta Prakriti more dominant, that's where more with the water element Prakriti, definitely this fruit or the seed of this fruit will be helpful. It increases the Vata as I've said. So definitely it's not much better for the Vata Prakriti. Even type 2 diabetic condition, it could be better choice. Relieves tiredness. Again, it helps to relieve tiredness from the body. Balances Pitta. Yeah, it also helps with the burning sensation. So we're going to talk about its vinegar of the jamun along with the sesame oil externally used, and for the internally use you can just have the jamun fruit so that it will specify the pitta from the body because it is cooling in nature. It also helps with the worm infections in your body and also the bleedings in your body. So definitely if you consume this, it has the estrogen property, and most of the fruits with the estrogen property helps to get rid of the worms. Then 6 asthma, COPD, wheezing, breathing difficulties, all the kapha related problem. If the accumulation of kapha is there, definitely this fruit will help in improvement in the digestion and definitely helps to reduce in the kapha from the body. This is how it works. It improves the taste and useful in anorexia. So the people who don't feel to eat anything, definitely this fruit will help you to give right hunger, sensation of hunger, that is Deepan and Pachan. So definitely you could able to have your normal meal. It improves the digestion since it stimulates your liver and the Agni. That's where it also improves your digestion. Next, it reduces the urine quantity. So when we talk about the vipak of it, so see, when we talk about the vipak here,
So since it is Katu Vipak, means after effect of the fruit, which absorbent in nature. So that's where it will hold it. Let's say urine, let's say sweat, let's say your feces, that is stool. It will try to hold it. And that's where we are using in the diarrhea condition. You getting my point? So what generally we suggest in diarrhea condition? Some of the honey, because again it is astringent in taste. Then amla seed powder. Okay, that is what suggested. Grahi things. Okay, and then your belfal churan. So these are astringent taste, which has the property of holding. So again, it will hold the urine, excess of water. And that's where again it has a property of holding the urine. Now like it will not increase the quantity of urine and the glucose level in the urine. That's what it is. And yeah, it stimulates the liver and improves the function as already discussed. Increase the constipation with higher doses. So why? Because it is a grahi in nature. So which constipation it can create? When you have the dry stool, in that constipation, in that where it can create more constipation. It will create a more dry stool if you already have it. Okay. So there are different type of IBS, that is Vataj IBS, Pittaj IBS and Kaphaj IBS. In Pitta related IBS where there is a more loose stool, okay, in that condition definitely this will help. Next, stop bleeding. As I've said, when you use this internally also or externally as well. So if you just pour some powder of the seed of the jamun, so it will helps to stop the bleeding. Okay. And internal use also will help to stop the bleeding. Then yes, it will help to reduce the urine sugar. So jamun sugar churn for the external use, as I've said, it can be used internally and externally. So that will help to reduce the blood wounds. Then sesame oil along with jamun vinegar, external use for the burning sensation. In autumn season, definitely people get the burning sensation. Okay, and in even in the summer season, you can use the vinegar of jamun, which is somewhere cold in potency, and along with the sesame oil. So it will help to reduce the burning sensation on your body. Okay, and this, I guess, this last point is not relevant here, so you can ignore the 17 number of point. Okay, so I guess this is it for about the jamun. So what is important here that we talk about rest of the thing which is not important, what is given in Ayurveda, freshly we cover it. Rest, what modern science says about it, we don't cover here. Okay, this is all with respect of Ayurveda. So this is what about jamun. Reduce, yes, it will also help in the menstrual bleeding. It will also help in your white discharge. Okay, because it is grahi in nature, it will help in that as well. So this is how you use the science. You need not to look into the nutritions of it. Yes, Vikasji. Yeah. So now if anybody have any question, they can ask. Okay, let cheers. Praveen ji, आपका date of birth, can you please text me your date of birth and date of timing personally? I guess you are like facing lots of challenges with respect of your health, right? Please share me your date of birth and the timing here in the chat box. It is personal to me, or you can just text it. Bhel Phal powder is the powder of the outer shell. No, from inside you get in the market easily. It's from the fruit itself. What they do is they take the unripened belfal, okay, and then they dries it up, and that's where they mix the powder. So whenever there is a bleeding, definitely this will use. When we talk about the jamun powder, it is helpful, but you have to like talk to the expert who is like going to suggest you how much to be consumed and how long to be consumed. Okay. Can we ask question outside topic but related to Ayurveda? Vedika. Chandak. Vedika. Yes, Vedika, you can. Definitely. See, if there is no topic like you don't have any question with respect of jamun fruit, definitely you can ask Ayurvedic question. So you people can unmute yourself. You have the right to unmute, I guess. Yeah, you have right to unmute. Jamun only after food. Yes, after food you can have, since it is more estrogen taste dominant, and that's what sweet, sour, salty, pungent, bitter estrogen. That's the sequence of the food. Definitely after lunch you can have.
Empty stomach we don't eat it because it increases the vata more. If you already whatever, let's say if you drink water before your meal, definitely that will increase the vata. So we avoid eating fruit like jamun in empty stomach. That's the only thing. If we cannot consume dairy product, can we substitute it with the coconut milk or almond milk? Coconut milk, almond milk, again, see, it's not about the dairy product, it's about the capacity of digestion. So when we talk about coconut milk also required digestion, almond milk also required digestion. Coconut milk increases the kapha dosha in the body. Almond milk will increase the pitta dosha in the body. So it depends like which dosha you like to increase in the body. It doesn't mean that milk is bad, like dairy is bad, but whatever things you take, it has the impact on the body. Okay. And consuming coconut milk in the spring season, definitely it will create a problem. Yeah. So liquid diet is not much suggested during the spring season. Yeah. So that's the game of the nature. Even though you are the pitta dominant, thing is the nature is a more dominant with the kapha. So your pitta kapha will increase. Yeah. Jamun leaves also has the importance, but what we have to is what is available in the market. आंवला फल और आंवला चूर्ण 365 दिन ले सकते हैं अरुण जी. It depends upon your goal. Again, it works as a rasayan. If you consume with right, you know, substitute like honey or ghee, something like that, it works as a rasayan. But if you just take a amla powder and if you're prakriti of vata, then definitely it will create problem. Again, it can create obstruction, maybe in the form of, you can change the forms, like a form of achar, form of murabba, according to change in the season you can consume that way, no problem. Okay. And even the amla phal, it in the specific seasons only. In all the seasons you cannot eat amla fruit as a fruit. Okay. So as a rasayan, there is no problem. Jamun leaves are also used for the internal consumption, and but that topic I did not cover here because I don't want anybody to practice anything. I should consume amla candy after meal. Amla candy you better consume before your meal, not after the meal. Won't spike blood sugar level. So it will spike the blood sugar level if you can see in this way, like if you don't have a hunger and if you eat sugary food, definitely it will increase. But you see how much quantity you're eating. You're not going to have this much, right? When to eat chamanprash? Again, the chamanprash, the preferred time is the morning time. But in the chamanprash, you have to see your appetite. You have to see if there is no ama condition. And again, yeah, chamanprash is a rasayan. So your body should be clean while consuming the chamanprash. Okay. So if you have obesity, chamanprash is not good. Then you have thyroid condition, chamanprash is not good. So there are contraindication as well for the chamanprash. Rasayan is something which helps to rejuvenate you throughout your life. So that doesn't make you old early. That is what is called as rasayan. Okay. All right. So should always consume rasayan morning. It depends. Rasayan only work when your body is clean. People who do not have haven't cleansed their body with the help of, let's say, panchakarma or on the weekly basis or 15-day basis, they have kept their gut health good. In that way only the rasayan works. Otherwise the rasayan will not help you. मैंने अनार ले सकते हैं क्या? पका हुआ अनार आप 12 महीने ले सकते हैं, पर पका हुआ पपीता आप 12 महीने नहीं ले सकते. Can rasayan be consumed every prakriti? Every prakriti has their different rasayan, and yes, every prakriti can consume the rasayan, but only applicable when they follow dincharya, pathya, and like following the rules of Ayurveda. That's where in morning 6 a.m. they have to consume it. They're after passing the stools and everything, they feel light. So that's where it gives the benefit. Otherwise, the rasayan is not for everybody. Okay. Okay. So you can go quick with the question because if not, definitely there is no point of extending the session. Do you have any question, anybody, with respect of jamun or any other question you have with respect of fruits? एक रायण करके आता है फल, रायण रायण इधर मिलता है हमारे ठाणे में, Ryan. वो खा सकते हैं। रायण छोटा होता है एकदम, उसमें Ryan fruit. चिकट चिकट होता है। फिर ये करवंदा एक आता है, करवंदा ये रायन ये इसकी तरह ही होता है ना, ये जैसे येलो कलर होता है, ये मीठा होता है ना, मीठा 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 होता है। ओके, जैसे मेरा डेट्स. चबाएंगे ना, मेरे ख्याल से सोल्यूबल
फाइबर ज्यादा रहता है, सब लोग ऐसा बोलते हैं कि इंसोल्यूबल नहीं, सोल्यूबल फाइबर ज्यादा है, इसलिए ये लो हाँ, अच्छा रहता है। सब सब राय रायण करके आता है रायन, यस। गुजराती में। गुजराती में रायण बोलते हैं, अभी मराठी मध्ये काय सांगतात मला माहित नाही। ओके, अगेन मुझे इसका रेफरेंस देखना पड़ेगा आयुर्वेद के हिसाब से। तो आई आप गेस। गूगल में जाएंगे तो रायण लिखेंगे ना, तो उसका मराठी में आ जाएगा शायद। गुजराती में रायण बोलते हैं। येलो कलर का होता है छोटा सा फल, और हाँ उसका हाँ, एक पर्टिकुलर तो सीजन होता है, उसमें ही होता है वो। आई गेस ये समर सीजन में आता है। हाँ, समर सीजन क्योंकि में। आई आई ऑल्सो रिमेम्बर लाइक बचपन में मैंने खाया था ये, हमारे आई गेस नागपुर में बाग भी है इसके। और एक सेतूर करके आता है, सेतूर, उसको ओके। मालबेरी बोलते हैं शायद। सेतूर, मालबेरी, मालबेरी, वो वो भी इधर हमारे वहाँ बहुत पेड़ है, तो उसमें फिर कच्चा होता है, पक्का होता है ना वो तो पोपट और ये जो भी पेरट और ये सब खा जाते हैं। ओके। या कभी भी वो ब्लैक कलर हो जाता है मालबेरी, मगर वो कभी भी मिलता ही नहीं हमारे इधर ही है। वो पेड़ है तो हाँ उसके हाँ बोलते हैं कि उसके पत्ते हैं, मालबेरी के जो पत्ते होते हैं ना, वो हाँ। पत्ते, वो रेशम बनाने वाला कीड़ा होता है ना, वो खाता है ये। अच्छा। तो वो आप भी खाएंगे ना, मीन्स हम लोग जो खाएंगे तो उसका भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है शरीर पे, ऐसा ऐसा बोलते हैं। जी जी, ये रायन मैंने खाया है, मतलब इट हैज मोर लाइक फाइबर, ये उगता भी है नागपुर में, यहाँ पे बाग है बड़े इसके। हम्म। काफी क्वांटिटी में इनको, काफी जल्दी भी, मतलब इसमें फ्रिज वगैरह में रख के मार्केट में भी देते हैं समर सीजन में। हाँ, मुझे हम्म। दिख रहा है। ठीक है, इसका हमें देखना पड़ेगा रस और वगैरह। ये करवंदा, करवंदा, करवंद। जी। करवंद। वो कैसा है? देखिए, करवंद का कैसा है, वो करवंद हमें जैसे टेस्ट पे ऊपर रहता है हर एक फूड का। पका हुआ करवंदा, करवंद उसका अभी वो टेस्ट तो। कैसा जी। है? यानी वो खा सकते हैं ना? वो भी मई महीने में ही आता है। वो जंगल में रहता है, जब भी पक गया है तो मीठा रहता है करवंदा। मेरी करवंद, करवंदा ही बोल। उसका डोमिनेंट टेस्ट थोड़ा खट्टा होता है, राइट। तो जब यानी मई महीने में जब भी आप जाएंगे ना, तो कांटे पौधा होता है, उसमें उगता है, कांटा बहुत रहता है उसको। राइट। वो कैसा है वो खाने का? करवंद अगर खट्टा मीठा तो डेफिनेटली वो वात वात पित्त को कम करेगा। अगर वो उसका डोमिनेंस ही अगर अगर वो खट्टा मीठा मीठा। है तो वात वात को कम करेगा। अगर वो, सॉरी, मीठा खट्टा है तो वात को कम करेगा। अगर वो खट्टा ज्यादा है और फिर एस्ट्रोजेंट है और स्वीट है तो वो फिर मतलब इतना नहीं हम्म। बढ़ाएगा जितना संतरा बढ़ाएगा। बट हम्म। उसके बोलते हैं ना कि अगर संतरा 100% बढ़ाएगा तो ये जो है करवंद ये 25% ही बढ़ाएगा। कार्ड से आपके अच्छा, लिए मेरे को एक सिग्नेचर दूसरा भी चीटिंग पूछना से जी, है। हम बोलिए। जो केले खाते हैं ना, केले तो ज्यादातर वो लोग कोई एक पानी में डुबा के निकालते हैं और ऐसे पकाते हैं, जल्दी हो हाँ, जाता है ये। जल्दी हो जाता है वो। तो अपने को मालूम नहीं पड़ता है कि ये ऐसे पकाया कि वैसे पकाया, मगर इससे कुछ नुकसान होता है क्या? ये जो मार्केट में जो केले मिलते हैं, जैसे कुछ केमिकल या फिर गैसेस से जल्दी उसको पकाया जाता है, तो हम्म। उसके जो पीछे जो होता है ना, जहाँ से वो फ्रूट्स लटकते हैं, तो हम्म। जो से नेचुरली जो पकाया गया है हम्म। उस कंडीशन में, बट ऐसा मिलता नहीं है। तो बेटर है हम्म। आप और घर में उसको एक पोते में रख दो 6 5 6 दिन, हम्म। और अपने आप पक जाते हैं। अच्छा। टेस्ट भी आते हैं, टेस्ट भी अच्छे और रहते हैं उसके। और एक दूसरा, ये जो हम सेब लाते हैं वो इधर तो सब ये जो भी है उसके ऊपर एक परत लगाई हुई होती है, ये क्या बोलते हैं, वैक्स की। वैक्स रहता है। वो परत लगाई हुई ही होती है। मैं कितना भी, वो बोलता है कि ऑर्गेनिक है, और घर पे लाके उस छुरी से ऐसे निकालते हैं ना, तो परत लगाई होती है, तो क्या वो उसकी और खाए तो उस हमको क्या बोलते हैं, नुकसान है कि अच्छा है? देखिए, ऐसे कंडीशन में क्या है कि वो जो उसको ना, एप्पल को खुद का भी एक वैक्स ही होता है उसके ऊपर। अगर आप अच्छा। बोलो उसके, वो तो है, बट उसका खुद का भी वैक्स होता है। सो मे अच्छा। नॉट कि अगर उन्होंने बोला है कि के खुरोज को भी निकालोगे ना, अगर उसको ऐसे भी तोड़ते हो तो डेफिनेटली उसको उसमें भी आपको वैसे ही मिलेगा। अच्छा। अच्छा, यानी हम्म। ये जो मैं ऑर्गेनिक इधर है उसमें से लेता हूँ, तो वो जो ऊपर से जैसा वो वैक्स नहीं होगा? और उसका खुद का भी वैक्स रहता है। अच्छा, 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 ये अच्छी बात बोली, नहीं तो ये मेरे लिए नई बात है।
क्योंकि मैं तो उसको फरियाद करने गया था, ये बोल रहे आप लोग ऑर्गेनिक का पैसा लेते हैं और इधर ऐसा ऐसा वैक्स वाला है, तो बोलता है ये झूठा नहीं बोलेगा वो नहीं हो जैसे पैसा। जम्मू से वगैरह आज जो देखा है कि अगर बाहर अमेरिका मतलब बाहर कंट्री से आ रहा है तो उसको आते आते ही 2 से 3 महीने, ठीक है, तीन हम्म। महीना उसको शिपमेंट में लगता है यहाँ से आने के लिए। फिर यहाँ पे हम्म भी वो शेल्फ लाइफ उसकी बढ़ाने के लिए उसको वैक्स करना पड़ता है। तकरीबन पूरा 1 महीना यहाँ पे पकड़ लीजिए, मतलब वो 4 महीने तक खराब ना हो उस हिसाब से उसको वैक्स लगाया जाता है। हाँ, अगर मगर ये वैक्स पेट में जाएगा तो खराब है कि अच्छा है? और डेफिनेटली लॉन्ग रन में तो कुछ ना कुछ हार्म करेगा ही, बट अब जैसे इन मतलब क्या नॉर्थ साइड से मंगाते हो या फिर फार्मर्स हम्म मंगाते हैं, डेफिनेटली हम्म वो हार्म नहीं करेगा उतना, क्योंकि उसका अगर वैक्स नहीं लगाते तो हम्म आपको वैसे मिल रहा है तो हम्म। अच्छी बात है। ओके, तो लेट मी टेक बस सम थैंक यू। क्वेश्चंस। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू अरुण जी। जूस थेरेपी कैन इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन गट। जूस, ओके लेट मी जस्ट टेक क्वेश्चंस फ्रॉम द टॉप। 12 महीने अनार ले सकते हैं, यस अनार का मैंने बोला क्या 12 महीने ले सकते हैं, पपाया नहीं ले सकते। पपाया इम्प्रूव करता है अग्नि को, बट आप उसको कंसिस्टेंटली अग्नि मानदे भी करता है, ऐसा है पपाया का खेल। सो बेटर नॉट टू कंज्यूम पपाया ऑन द रेगुलर बेसिस, ठीक है। तो ये तो आपको इससे ही पता चलेगा, आयुर्वेद से ही पता चलेगा कि लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होता है। मगर ये जो अनार है, मैं वो हम्म। चबा के उसका जो अंदर का बिया होता है ना, वो थूक डालता है उनको कि नहीं? नहीं, आप वो बिया मतलब बी खाओगे तो क्या होता है, वो ग्राही करेगा, मतलब वो स्टूल को बांध के रखने की उसमें ताकत होती है, वो सीड में ही होती है, क्योंकि उसका कषाय टेस्ट होता है, चबाने के बाद होता है ना वो, जैसे सुपारी खाए हम्म जैसे लगता है, हम्म राइट। तो उसका वो कषाय टेस्ट है, तो वो बेनिफिट आपको नहीं मिलता है। तो डेफिनेटली अगर आपको सिर्फ उसका टेस्ट चाहिए, मतलब होता है ना कि मधुर और आंवला टेस्ट हम खाते हैं तो उससे मन को अच्छा भाता है, वो टेस्ट मन को अच्छा हम्म। लगता है। सो डेफिनेटली आप वैसे भी कर सकते हो। क्योंकि मैं तो एक साथ में थोड़ा लेता हूँ और पूरा चबा के उसका बिया भी चबा देता हूँ और फिर उसको थूक डालता हूँ, खाली जूस जाएगा अंदर जूस जाएगा, उसका। बट ये ना तो उसका वो बेनिफिट भी मिलेगा, जो स्टूल को थोड़ा बांध के रखेगा ना, हम्म। तो आपके ऊपर है। जैसे बांध के रखने का मोस्टली अभी ये सीजन में लगता है, अभी लोगों को लूज मोशन अभी इस सीजन में होते हैं, स्प्रिंग सीजन में हम्म। एपेटाइट लो हो जाता है, फिर उधर आपको समर सीजन में काम आएगा, ऑटम सीजन में काम आएगा, तो फिर आप चबा के खा सकते हो, ठीक है। फॉर लो मेटाबॉलिक पर्सन शुड वी ईट मील्स वंस अ डे। फॉर लो मेटाबॉलिक पर्सन इट नीड्स टू गेट ट्रीटेड फर्स्ट। Okay, eating once a day for 3 4 days not a problem to increase for the lungun, to increase appetite. But if you do it in the long run, definitely there will be a problem. So there is a medical condition that need to be get treated when you feel only one time hungry. Is that clear with everybody? Please, this is very serious question. Can we? Shall I eat only one time if I feel hungry one time only? That's a question. No, then there is a problem with your metabolism. We need to fix this. Type CL in the chat box if that is clear for you. कोई भी ऐसे बोलता है ना कि भूख नहीं लगती इसलिए मैं एक टाइम ही खाता हूँ, उसका मतलब है उसको कुछ ना कुछ बीमारी है, उसको ट्रीट करना पड़ेगा। कोई बोलता है मैं रोटी पचा नहीं पाता हूँ, उसको बीमारी है, उसको ठीक करना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी ना पचा पा रहा है, उसको बीमारी है, उसको ट्रीट करना पड़ेगा, उसको ठीक होना पड़ेगा ताकि वो दूध पचा पाए, ठीक है। तो आप बीमारी को दबाओ मत, यही हो रहा है अभी मार्केट में, इसलिए मैं थोड़ा ना मेरा फ्रस्ट्रेशन निकल जा रहा है कभी कभी, कि हर एक चीज को जूस के इसमें दबा दो, कुछ डाइट कम करके दबा दो या फिर फास्टिंग करके दबा दो। ये दबाने का काम मत करो प्लीज, आप ट्रीट पर उसको बीमारी को दबाओ मत। दबाओगे तो उसकी क्रॉनिसिटी बढ़ जाएगी, फिर दिक्कत हो जाएगी। ओके, so please get it treated if you feeling just one time hungry. Can so jamun can be eaten in the autumn season, Harita ji, where it is required. पाउडर घर पे बना सकते हैं, यस जामुन का बीज का पाउडर घर पे बना सकते हैं। व्हाट शुड बी द फ्रीक्वेंसी, व्हाट काइंड ऑफ रसन कैन बी कंज्यूम, कैन वी ईट। ओके, ये हो गया, जामुन इज 100% कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन वाता डोमिनेंट कफा विकृति। वाटर डोमिनेंट कफा विकृति, इट्स see, one day you feel your vata prakriti and one day you feel constipated. So you can eat, that's not a problem. But in vata kapha, it can be a problem. So better you consume as a estrogen as a jamun. Sorry, your pomegranate. अच्छा, एक मेरे को ये पूछना था कि होता है उसकी जो गुठली होती है, उसको तोड़ के अंदर से जो गुठली निकलती है, वो सब लोग बोलते हैं
B12 बहुत होता है उसमें, तो वो खा सकते हैं क्या मुखवास, एज ए मुखवास? वैसे नहीं होता है कि क्या होता है, एक चीज की ना लिमिट होती है, उसका एस्ट्रोजन टेस्ट है। एस्ट्रोजन टेस्ट क्या करेगा ना, ब्लड में ब्लॉकेजेस रहेगा, मतलब स्रोतस में अवरोध क्रिएट करेगा, चैनल में ब्लॉकेज करेगा। अब अच्छा। B12 का हटा दो, ठीक है, आपको अच्छा लगेगा कि कोई स्ट्रोक से मर रहा है, ठीक है, कोई इससे मर रहा है, तो यही सब प्रॉब्लम है। B12 तो किसमें नहीं है, अच्छा। काफी चीजें है, राइट। अब अच्छा। आप, इसलिए एस्ट्रोजन टेस्ट को ज्यादा खाने के लिए मना करा गया है आयुर्वेद में, अच्छा। ठीक है। और उसको फोड़ने का काम कौन करता है, बिटर टेस्ट। इसलिए हम गिलोय खाते हैं। डोंट टेक इट एज अ फॉर द सेल्फ, बट दिस इज हाउ हाउ द साइंस वर्क्स। जूस थेरेपी कैन इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट इन द गट। So I'm not aware with what is the juice therapies, that I need to understand first. पाकिस्तानी मलबेरी, मलबेरी अगर बॉडी आइडेंटिफाई कर पाता है तो सही है फिर, अदरवाइज। अंकुर जी, शहतूत है ये, शहतूत आपने सुना होगा, मलबरी। हाँ, ये तो लोकली भी अवेलेबल है। हाँ है। कैसे रहते हैं, इतने बड़े नहीं रहते हाँ, जितने पा रहा हूँ। ये तो भी आते हैं, मतलब वो हाँ, डिपेंड पेड़ कौन सा है। कई तो ग्रीन भी मीठे हो जाते हैं, हम ब्लैक। खाया है मैंने तो ये। वो तो हम कंज्यूम कर सकते हैं ना, वो वात तो पित्त इसी सीजन रिड्यूस में आते करता हैं। है, या इट डिक्रीजेस वातायन पित्त इन द बॉडी। खा सकते हैं। इधर नेचुरोपैथी में एक बोलते हैं कि जो आपका सीजनल है और आपका रीजनल है वही खाने का। तो हम्म। अभी अभी जो एक आया है ना, ड्रैगन फ्रूट, फिर एक दूसरा सब है ना, ऐसा होता है मगर वो बाहर का है, कीवी कीवी। कीवी। वो सब अभी तो इधर इंडिया में भी पकाने लगे हैं, मगर एक्चुअली तो वो बाहर के ही है ना, तो खा सकते हैं क्या वैसे वो? खाना नेचुरली, तो पकाने का कैसा होता है ना कि एक हम तरीका देखते हैं कि इज इट ग्रोइंग नेचुरली और नॉट। अगर उसमें ज़्यादा एफर्ट्स लगते तो आजकल सब कुछ हो रहा है, राइट। तो अगर उसके हम्म। एफर्ट्स लग रहे जबरदस्ती, सो डेफिनेटली दैट इज़ नॉट यूजफुल फॉर आवर बॉडी। जैसे लोग ब्रोकली भी ज़्यादा यहाँ पे, अभी ब्रोकली का चलन चल रहा है। तो ये भी आपकी बॉडी, मतलब जो बोलते हैं कि आइडेंटिफाई नहीं कर पाती ये चीज़ को, क्योंकि हमारे दादा नाना ने ये चीज़ें नहीं खाई है। तो मे भी हाँ। असम्पशन में आप लाते हो, तो डेफिनेटली आपके अगर बच्चे वगैरह होते हैं, तो उनको उनके बॉडी को ये साथ में हो जाए, आइडेंटिफाई हो जाए, हम्म। है ना। और इसलिए बोलते हैं कि रीजनल ही खाना चाहिए, मीन्स जो पकता है ना वही खाना चाहिए। वो रहता है इसके ऊपर, जो पेरिशेबल गुड्स है, जैसे दूध हो गया, फ्रूट्स हो गया, सब्जियां हो गई, ये उसके लिए लागू होता है, ये रूल होता है, अच्छा। ठीक है। क्योंकि उसके पीछे का लॉजिक ही वही था। हम्म। क्योंकि हम यूज नहीं करते हम्म। क्या, हम मुझे बताइए कि हर्ब्स हमारे यहाँ पे होते हैं, जैसे मैं नागपुर में रहता हूँ, हमारे यहाँ पे हर्ब्स हम्म। अवेलेबल नहीं है, तो डेफिनेटली हमें किसी और सिटी से हमें लाना पड़ेगा, राइट। और देखिए यहाँ पे जैसे हम भी यूएस में हमारे हर्ब्स मतलब किसी को रिक्वायरमेंट है तो उनको भी हम, मतलब लोग यहाँ से लेके जाते हैं, या फिर हमें भेजना होता है पेशेंट्स को, ठीक है। क्योंकि यूएस में तो 100 के ऊपर तो हर्ब्स ही नहीं है, क्योंकि उनको बराबर। knowledge नहीं है। हमारा इंडिया ऐसा एक देश है जो वात प्रधान है ना, तो हम्म। इसलिए हम्म। दौड़ना यहाँ पे मना है। इसलिए हम यहाँ पे हम्म। दौड़ते नहीं है। क्यों नहीं दौड़ते हैं इंडिया में, क्योंकि ये वात प्रधान देश है। 60 के बाद हम्म। आप उसको प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। मिल्खा सिंह पकड़ लो एग्जाम्पल, हम्म। कितना प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, बराबर। ठीक है। तो इंडिया ही वात प्रधान देश है, तो वो सब देख के हमें चीजें करना चाहिए। हम्म। इसलिए ज्यादा घी, तुप और ये अभ्यंग ऑयल, इसके ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है ना। बराबर। अभी वो जो हम लोग जो दूध पीते, ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन दे दे के उसका ब्लड दूध बना देते हैं, और पूरा कस निकालते हैं गाय का, गाय या भैंस जो भी है। तो वो ऑक्सीटोसिन अपने को कुछ नुकसान करता होगा ना? जी, कैसा है कि आप अगर देखिए, एक दो जो भी आप यूट्यूब पे देखते हो, मोस्टली फॉरेन चीज, जो फॉरेनर्स क्या करते हैं अभी, तो क्या क्या नहीं कर रहे, बीआर पहना रहे, ये कर रहे हैं। वहाँ पे उनको दूध मतने हाथ से भी नहीं मतते हैं, उसके लिए भी उनके पास मशीन्स है, ठीक है। उसमें हम्म। से कितना एक्सट्रैक्ट हो रहा है, वो तो मशीन को भी नहीं पता ना, वो तो खींचे जा रही है, राइट। हम्म। और ये सब चीज़ें को इंडिया में कैसे, अगर आप लोकली मिल्क लेते हो, आपका वेंडर अगर पहचान का है, जैसे हम भी लेते हैं नागपुर में, राइट। सो डेफिनेटली ये सब चीज़ें वहाँ पे नहीं देखने। हम्म। हम्म। तो इट डिपेंड्स अपॉन लाइक दूध खरीद रहे हो, अगर आपको अच्छा सोर्स मिल रहा है तो डेफिनेटली यू कैन बाय इट। और नहीं, जिसको नहीं मिल रहा है तो घी से काम चला सकता है, गुजरात से ले सकते एक खरवस जो होता है, खरवस खाना चाहिए कि नहीं? हैं। खरबस, आपका आवाज नहीं आ रहा है। ओके, खरबस
क्या है, मुझे एक बार देखना पड़ेगा किसको। खरवस मीन्स ये जो उसको जब भी बच्चा होता है ना, गाय को बच्चा होता है, तभी उसका 3 दिन जो दूध आता है, जो गाढ़ा दूध होता है, उसको खरवस बोलते हैं, यानी चीक बोलते हैं हिंदी में, और मराठी मध्ये खरवस सांगतात। जी। तो वो खरवस पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए अपने को? आपका एपिटाइट सर में विंटर्स में, हम्म, अदरवाइज कब सीजन में, जैसे अभी स्प्रिंग चल रहा है तो डेफिनेटली प्रॉब्लम करेगा। खा क्योंकि सकते हो, अभी ठीक है। तो यही बॉडी पे डिपेंड है, बॉडी क्या कर पाती है पर्टिकुलर सिचुएशन में, उस हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हो। सो आंवला पाउडर कैन बी और फ्रूट के कंज्यूम। अंदर जो बोलिए। फ्रूट के अंदर कौन सा फ्रूट वात को कम करता है? कौन सा फ्रूट खाने से वात कम हो? मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स, सभी फ्रूट्स एक्सेप्ट ये जामुन वगैरह हम छोड़ दे तो मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स बात को कम करता है, क्योंकि सभी फ्रूट्स कफा इंक्रीजिंग है, जामुन वगैरह को छोड़ के। ओके। यानी संतरा, मौसम्बी संतरा, सब, मौसमी, सब सब सब। और ये केरी। आम भी वात पित्त दोनों के, तो वात और पित्त दोनों, इसलिए पके हुए फ्रूट्स खाते हैं हम। और ये पपीता भी कच्चा नहीं खाने का ना, कि खाने का? कच्चे पपई की आप चटनी वगैरह बना के उसको अग्नि संस्कार देके आप उसको खा सकते हो। ओके। Amla powder can be consumed regularly with warm water. Can be consumed after meal, before meal, but depends upon again कितनी उसकी ज़रूरत है आपको. When there is no need, definitely you should stop consuming it. Otherwise, it will create a constipation. Triphala churna can be taken regularly at night. No, Triphala churna, any churna if you take consistently, definitely it will hamper your Agni. So not for the lifelong. Lots of raspberry is here in season. It's sour and sweet. Moderation. Better you consume in a moderation, Garimaji. Otherwise, it will increases the kapha in the body. So sweet and salt is better to consume in a moderation in spring season. You can go with bitter taste. Pitta Vata Prakriti Rasayan Churan is better. Can we consume the pomegranate daily with some cumin? Can we consume apple or daily basis? Yes, for current condition, pomegranate can be consumed with cumin. You can add cumin, some dry ginger powder you can add on it. You can consume that way. Apple is also can be consumed. But yes, making sure your appetite is good when you consume apple, because pomegranate is lighter to digest compared to apple. Jamun is 100% कल्पना. Okay. Contraindicated. सर एक मिनट में ये ना पूरे क्वेश्चन यहाँ पे खत्म कर लो, देन यू कैन आस्क. Jamun is 100% contraindicated in Vata. As I said, when there is a more Vata compares to the Kapha, definitely better to avoid it. Chick. Okay. जी अभी अब जो अंगूर खाते हैं उसके अंदर बिया नहीं रहता है, तो वो बोलते हैं कि जेनेटिकली मॉडिफाइड फ्रूट है, तो वो तो कंज्यूम नहीं करना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। कि जिसके अंदर बी होता है, सीड होता है, वैसा ही अंगूर खाना चाहिए, फिर वो ब्लैक हो या हरा हो, ऐसा बोलते हैं। तो उसमें क्या सत्य क्या है? सत्य खाना नहीं खाना दुविधा में है हम। तो स्प्रिंग सीजन में अंगूर तो नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये टू नेचर सीजन है, मतलब मॉर्निंग में ठंड रहता है, आफ्टरनून में गर्मी रहती है, तो स्प्रिंग में अलाउ नहीं है। अब बात करें इसकी सीड्स की, तो मैं तो जो हमने जो देखे हैं नागपुर में और जो मैं हम खाते हैं, तो डेफिनेटली उसमें तो सीड्स होते हैं, तो मैंने विदाउट सीड्स तो अब तक नहीं देखे। बहुत सारे अंगूर विदाउट सीड ही रहते हैं इधर तो। वो थाना मुंबई के अंदर तो विदाउट सीड वाला ही मिलता है, तो सीड नहीं होता है, इसलिए सब लोग हाँ बहुत अच्छा ऐसे करके खाते हैं। वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है। ओके, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड अभी बोलते हैं, जैसे आप बैगन भी देखते हैं, राइट? बैगन में तो कितने सारे वैरायटीज आ चुके हैं, ठीक है। बैंगन करेला। बैंगन ही नहीं, आप जो आते हैं ना, मक्का भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो सब जेनेटिकली मॉडिफाइड है। फिर नहीं, से कॉटन मैं सीड ऑयल है, वो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड है। जेनेटिकली मॉडिफाइड है, हमें ये समझना पड़ेगा कि उसके उसमें चेंजेस क्या हुए, जो हम बात कैसे करते हैं रसवीरी विभाग की। आप मुझे बताइए कि जो न्यूट्रिशन था करेले में, आज भी वही है जो उसका न्यूट्रिशन। सेल्फ लाइफ है ना, जेनेटिकली मॉडिफाइड, उसका सेल्फ लाइफ ज्यादा रहती है। टमाटर दो प्रकार के आते हैं, एक जेनेटिकली मॉडिफाइड और एक जल्दी से खराब हो जाए। तो वो जल्दी से खराब न हो, इसलिए उसको जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएमओ करके करते हैं वो लोग। बड़ा भी होता है और खराब भी नहीं होता है। आप 15 दिन बाद अच्छी बात नहीं है, ऐसा बोलते हैं लोग। ओके। सो जब आयुर्वेद में सब लिखा गया था, जब फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, ऑयल सब के बारे में बताया गया था,
तब उन्होंने एक वर्ड स्पेसिफिकली मेंशन करा था कि ये उसके असली अवस्था में हो। ठीक है, तो जब भी हम यहाँ पे फ्रूट्स वेजिटेबल्स ऑयल खाने क्या, तो हम यही कंसिडर करके बोलते हैं कि ये एक ऑर्गेनिक है। ठीक है, जो एक नेचुरल फॉर्म में होता है। सेकंड चीज जो हम बात करते हैं कि इसकी विकृत होने की, जो पेस्टिसाइड हम वगैरह डाल रहे हैं, मेरा क्वेश्चन यही था कि जो 5,000 साल पहले जो करेला था उस समय पे था, ठीक है, करेले में और आज के करेले में न्यूट्रिशन में डिफरेंस है या नहीं है, ये मेरा क्वेश्चन था। हम्म, है कि नहीं है? वो तो वैसा ही कड़वा है। हाँ तो है, पर न्यूट्रिशन में फर्क है कि नहीं है? वो तो है, क्योंकि जो जमीन में Definitely it होगा, will. जी, जमीन में जो होगा वही मिलेगा ना। मेरा जमीन में क्वेश्चन क्या कष्ट है, नहीं होगा। मेरा कि न्यूट्रिशन चेंज है कि नहीं है? जरूर है, जरूर चेंज है। ठीक है, टमाटर 5,000 साल नहीं, टमाटर का इतिहास ज्यादा बड़ा नहीं है इंडिया में। कोई और लेते हैं, लेट से अपना तरबूज ले लेते हैं। ठीक है, तो तरबूज जितना न्यूट्रिशियस 5,000 साल पहले था, इतना न्यूट्रिश अभी है कि नहीं है? मेरा क्वेश्चन इतना ही है। नहीं है। नहीं है, पर जिस हिसाब से वो बिहेव कर रहा है ना, वो तो वैसा ही है कर रहा था। ऑर्गेनिक खाओ या मत खाओ, उसकी आपको वो जो है ना, एक काइंड ऑफ बोलता है ना, इंस्टेंट इफेक्ट सेकेंड डे दिखाएगा जो भी आप खाते हो, राइट? पर उसका जो लॉन्ग टर्म जेनेटिकली जो जीन्स लेवल पे या फिर आपके डीएनए लेवल पे जो डैमेज हो रहा है, उसकी बात हम अलग से करेंगे। क्योंकि उसको रिपेयर करने का काम फिर से किसका है? घी का काम है। तो घी का महत्व किस लिए है आयुर्वेद में? ताकि टॉक्सिन्स को बाहर निकाले, इतनी क्षमता घी में है। तो आप लोग क्या कर रहे हो? फ्रूट से यहाँ पे घी तो मिसिंग है ना, जो आपके टॉक्सिन्स को निकाल रहा था, बराबर। रुक्षता को बचा रहा था, रुक्ष नहीं होने दे रहा था शरीर को। तो आयुर्वेद में घी का इतना ज्यादा वर्णन है कि अच्छा, भैया एक के अलावा आप मतलब जी नहीं सकते। तो एक घी का दूसरा ठीक है सर्जन उदाहरण। सर्जन सर्जन करके आता है। सर्जन की सिंग होती है ना। हम्म सर्जन को मराठी मध्ये सेवग्याची सिंग, हम्म सिंगा बोलते हैं, हम्म सेवग्याची सिंग। हम्म। गुजराती में सरगवानी सिंग। वो खानी चाहिए कि नहीं खानी चाहिए? वो बात बढ़ाएगी आपके ऊपर है, मतलब क्या बढ़ाना है, कौन से दोष बढ़ाने हैं, किसको वाता मगर डोमिनेंट ज्यादा उसके है। ऊपर हम संस्कार करते हैं, अभी उसमें लहसुन डालते हैं, उसमें दूसरा सब जो बात अदरक डालते हैं, तो वो डाल के सरगवा के साग बनाएगा, साग सब्जी बनाएगा, तो वो खाएंगे तो सरगवा अच्छा है कि नहीं? या उसके पत्ते खाएंगे तो वो पत्ते अच्छे है कि नहीं? देखिए, आप ये किसी नरेंद्र। को खाते हो ना, तो जैसे एक चीज होती है कि मान लो कि बादाम खाने से पित्त बढ़ता है, उसको आप पानी में भिगो के उसको बैलेंस कर सकते हो, पर आप ये नहीं बोल सकते कि उसका पित्त 100% चला गया है। इसका मतलब ये नहीं ना कि हम 100 बादाम खा ले। यही होती है हम्म। सब्जियों के साथ, जब जब भी आप उसको थोड़ा ये करते हो ना कि थोड़ा उसको बैलेंस में आप ला सकते हो। आप ये नहीं बोल सकते कि पूरा वात आपने उसका कंट्रोल कर लिया है, क्योंकि डोमिनेंसी तो सब्जियों की ज्यादा है, राइट? अब जो अदरक डाल रहे हो उसमें उसकी इंटेंसिटी क्या है? लहसुन डाल रहे हो, चाइना से आ रहा है अलग से, उसके उसकी तो अलग ही बात है, छोड़ दो। तो हर एक पॉइंट, हर एक चीज की अभी इंटेंसिटी भी कम होती है, राइट? तो ऐसे केस में हमें देखना चाहिए कि मूल जो सब्जी हम खा रहे हैं उसकी प्रकृति क्या है, तो बात तो वैसे भी बढ़ाएगा आप खाओगे तो। और उसके पत्ते खाने से तो वो भी पत्ते भी बात बढ़ा। हर पत्ते वात बढ़ाता है शरीर में। अब जो भी पत्तेदार चीज खाते हो ना, वो शरीर में वात बढ़ाती है। अच्छा अच्छा, ठीक। सिर्फ एक ही हमने पत्तीदार सब्जी बताई थी जो इतना शरीर को हार्म नहीं करेगी। कोई बताएगा ऑडियंस में से? विच वॉज दैट लिफी वेजिटेबल विच डजेंट हार्म मच? बथुआ। बथुआ, ओके, गॉट इट। सो बथुआ के बारे में बात हुई थी। सो बथुआ इज वन लिफी वेजिटेबल विच डजंट हार्म। ओके नरेन जी, आप पूछ सकते हैं आपका क्वेश्चन, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। Now we are नहीं। getting, as you said, you are getting lot of pesticides and fertilizers used in vegetables and fruits and all. Is there now the people are telling to wash it with the salt and turmeric? How would what can you say on that? Can it will we reduce the pesticides and intensity of that? या tamarind Any water. any other method is there to reduce it more? So tamarind water definitely will help to reduce the externally what chemical that you apply. That's what we learned so far from the like this organic community and all. And after that, when we talk about the internal like the damage because of Because of pesticides, because it goes inside pesticide is just definitely. externally, okay, but when Yes. it is a hybrid, when the food is not in true nature,
definitely you cannot do anything about it. Okay, because I spoke to few of the farmers, they say actually there's a two type of pesticides what they use. One is the systematic, one is the one more the compound. Like when we throw the pesticides on the leaves, it only the like affected area, like a pest like only the leaf means any insects bites on the leaf that dies. One more pesticide what they use is a systematic. They put it if they put means that goes under the cell also under the stem also stems and the roots with that they can't able to reduce their telling that we can't do anything that totally definitely the damage is happen means happen we can't do anything after using water you do they you can't able to do anything they says can we do anything on Ayurveda like that anything method is there. So that's why I said what we can do is like again the grains that we consume like rice, your wheat, definitely it again has the chemicals on it, and that's where the ghee is the substance which help to detoxify in the cellular level. That's the beauty of it. Am I getting here? Yes, So are you yes, getting here? So ghee has yes, a yes. property which works in the cellular level, and cellular detoxification can be done with the help of ghee. And that's where most of the So medicine in Ayurveda suggested with the help of either with the ghee or honey. okay, okay. Yeah, And can we take the ghee on daily basis can take definitely. it. Even the Okay. Kapha Prakriti can have the 1 or 1/2 tablespoon on the regular basis. Oh fine, fine. Okay, thank you doctor. Yes. एक और पूछना था मेरे को। पूछे ना। नारियल जो होता है, नारियल, उसकी गरी हर रोज खाएंगे तो अच्छा है कि खराब है? नारियल एक फ्रूट इसको देखते हैं तो गरी उसकी ग्रीन 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 नारियल है, वो हाँ, सूखा नहीं, कोपरा नहीं, ये आप मुझे पता है आप इसका बात कर रहे हो जो जिसमें पानी गरी रहता है, राइट? बड़ा वाला, गरी। राइट? तो वो जो साउथ इंडियन लोग हर रोज हाँ, खाते हैं ना, हाँ, क्योंकि उसका चटनी में वही होता है। अभी मान लो इडली के साथ जो चटनी होती है वो उसकी, वो गरी की होती है। तो वो खाएंगे तो हर रोज खाएंगे तो कुछ नुकसान है कि अच्छा है कि जो भी है उसका क्या गुणधर्म है? उसका गुणधर्म जैसे हमने लास्ट इसमें भी डिस्कस करा था, पचने में हेवी है, ठीक है? तो आपका अगर एपेटाइट अगर कमज़ोर है, आप ज़्यादा उसको खा रहे हो तो डेफिनेटली आपको हार्म ही करेगा। और उसकी एक प्रॉपर्टी ऐसी है कि वो आम को रिलीव करने में हेल्प करता है शरीर में से। एक ऐसा फ्रूट है ये कि जो को भी रिलीज करने में हेल्प करता है बॉडी से, बट ये पचने में गुरु है, हेवी है। तो इसको विथ रिस्पेक्ट ऑफ सीजन एंड योर डाइजेस्टिव फायर, उस हिसाब से आपको इसको खाना पड़ेगा। और बेस्ट टाइम रहेगा लाइक समवेयर इन आफ्टरनून टाइम, जिसमें जैसे ऑटम सीजन में होता है ना, 1:30-2 बजे आप अगर कुछ लिक्विड डाइट खा रहे हो या फिर लिक्विड ही सेमी लिक्विड चाहिए खा सकते हो, ठीक है? और पित्त प्रकृति वाले को कितना घी पीना चाहिए हर रोज? पित्त वाले को तो मतलब दे कैन गो विथ अलॉन्ग विथ 2-3 टेबलस्पून आराम से वो खा सकते हैं, क्योंकि पित्त वालों के लिए तो बेस्ट फ्रेंड तो हम बोलेंगे वही है। जैसे घी अच्छा है, कफ वालों के लिए हनी अच्छा है, ऐसे। और थैंक हनी यू। भी अगर ओल्ड लेते हो तो ही वो खांसी जुकाम में काम आता है, अदरवाइज यू कंज्यूम द न्यू हनी दैट इंक्रीजेज द अगेन द कफा इन द बॉडी। तो नए हनी इज नॉट, नया हनी, न्यू हनी इज नॉट बेनिफिशियल एज द ओल्ड हनी। आप you people try to store the things like earlier time we used to do it. Honey, your then the ghee, your jaggery, these things are meant to be hold. और ये जो हम लोग ग्रेन्स खाते हैं उसमें कौन सा ग्रेन्स अच्छा है कि जो पित्त का दमन करेगा? Red rice. रेड राइस। अच्छा, और ये जौ, जौ कैसा है जौ? जो ये जो आप कंडीशन में खा सकते हो, जो हार्ट पेशेंट में हो गया या फिर जहाँ जिसमें ब्लॉकेजेस है, मोटे लोग हैं, उसके लिए जो ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि जौ में क्षार है। तो एक यवक्षार मेडिसिन आती है जौ से ही बनती है। तो ये क्षार ज़्यादा है, तो आप अच्छा, अगर ये तो फिर प्रॉब्लम होगी। ये भी मॉडरेशन में ही खाना चाहिए जो को। और रेड राइस आप कितना भी खा सकते हैं? रेड राइस सात्विक है, कोई भी खा सकता है, कभी भी खा सकता है। और मॉडरेशन, मॉडरेशन उसमें मॉडरेट। मॉडरेशन तो है ही, ऐसा कोई भी खा सकता है और कितना भी खा सकता है ऐसा नहीं है, वो तो मॉडरेशन में ही खाएगा खाने, ठीक है? ठीक जो है। हम बोलते हैं 50% ऑफ सॉलिड, 25% लिक्विड, 25% एम्प्टी, उसी रूल से। अच्छा, जी। विच ऑयल इज गुड फॉर वाता पीपल? सो फॉर वाता itself the good oil is sesame oil. ब्लैक रहता है तो बेस्ट, इफ नॉट द नॉर्मल सेसमी घानी कच्ची घानी सेसमी ऑयल कैन बी यूज्ड, ओके?
और ऑयल नहीं खाएंगे और सीधा तिल खाएंगे तो तिल इतना अच्छा नहीं है, सिर्फ तिल इतना अच्छा नहीं है। तिल का तेल ही अच्छा है। तेल तेल आप खा सकते हो, वात व्याधि में आप खा सकते हो, गर्म होता है, वो भी सीजन देख के आप खाओ, ऑटम समर में अवॉइड करो, है ना। क्या एनी अदर क्वेश्चन, बोलिए हेमलता जी। वाता पर्सन वाले दिन में कितना स्पून घी ले सकते हैं? अगर वाता और अगर एज फैक्टर देखा जाए तो डेफिनेटली 2 से 3 टेबल स्पून ले सकते हैं। अगर पच नहीं रहा है तो उसमें आप सूंठ पाउडर डाल सकते ओके। हैं। जैसे हमें पचवा के लेना है, उसको पचा के लेना हाँ। है, तो उसको आप सूंठ पाउडर डाल सकते हो। अगर गर्मी ज़्यादा नहीं होती है तो ब्लैक पेपर भी थोड़ा क्वांटिटी में डाल सकते हो, वो पच जाएगा। और 2 से दिन भर में? जैसे क्योंकि मैं आप दूध ज़्यादा ज़्यादा खाओगे नहीं पचेगा तो फिर क्रीमी भी करेगा ना शरीर में। क्योंकि मैं दूध में सुबह आपने बोला कि दूध में 1 चम्मच डालती हूँ सुबह में, और अभी शाम में भी डाल रही हूँ, तो वो ज्यादा हो। डॉक्टर सुमित ने आपको हाफ टेबल स्पून से चालू करने के लिए बोला है, राइट। यस सर, यस, ठीक है। पालक पनीर और पालक tofu is okay for vata person who can't have lot of green leafy vegetables. So definitely vata pitta prakriti cannot have purely vata, purely vata pitta cannot have the green leafy vegetables. Pitta kapha people can consume the green leafy vegetables. Okay, even thrice a week, no problem, until they comes into the proper, the prakriti. And if even the person is a pitta kapha dominant and having the vata related problem, in there we have to stop. But rarely you get the people like this, like very old age. Definitely pitta kapha people are there which having the vata prakriti. Now when we talk about the palak paneer or the palak tofu, is it okay for vata person? So yes, if the appetite is good, because paneer is again grahi in nature and it creates obstruction in the channel. Appetite, if appetite is good, definitely can be eaten in the lunch. And yeah, cooked अच्छा palak paneer. अच्छा 80% वात और 20% पित्त वाला आदमी कितना घी खाना चाहिए? घी का ये है कि आप से पचा सकते हो, कितना आप 2 से 3 टेबल स्पून आराम से खा सकते हैं दिन भर में, हम्म। आराम से। और अगर आप बिलो ना खाते हो तो अच्छे से पचने में। मैं बिलो नहीं खाता हूँ, जी। बिलो नहीं खाता हूँ मैं। और और ऐसा वो कुछ नहीं है गिर गाय का ही खाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि कैसे होता है ना कि प्रदेश के हिसाब से होता है। अब जो गाय आपकी गावरानी गाय है, हम जो बोलते हैं, तो नागपुर की अलग गावरानी गाय थी, उसका अलग दूध यहाँ पे मिलता है। तो गिर गाय को इतना ज़्यादा पॉपुलराइज गुजरात में करा गया जब उनकी संख्या कम हो रही थी, तो इतना ज़्यादा पॉपुलराइज हो गया वो इंडिया में और जग भर में कि अभी सिर्फ गिर गाय का ही घी मतलब ज़्यादा फेमस है, हम्म। तो ऐसा नहीं है, जो आपके लोकल एरिया में जो गाय थी, गावरानी गाय, उसका दूध सर्वश्रेष्ठ है आपके लिए, उसका घी सर्वश्रेष्ठ है आपके लिए। इधर हमारे सब जितने भी गौठन है, मीन्स जो तबेले है, उसके अंदर देखा सब जर्सी गाय ही है। ज, जर्सी गाय ही है, इसलिए हम फिर गिर गाय की तरफ मुड़े हैं। और जर्सी गाय वो दूध दे पाएगी पर उसका वो घी नहीं बनता है, क्योंकि वो क्योंकि काफी वो डाइल्यूट, उसमें क्रीमी नहीं रहता है, फैट परसेंटेज नहीं रहता है। तो ये लोग क्या करते हैं फिर ऐसे तैसे करके उसमें भैंस का घी, मतलब भैंस का न डाल दूध का क्रीम दूध डाल। निकाल के उसमें ये करते हैं, राइट। गावा इन विंटर हियर नाउ हार्वेस्टिंग रेनी एंड कोल्ड टेम्परेचर 9 डिग्री नाइट 12 डिग्री डे, what body type are this okay to eat? Gava in winter here now harvesting. So Gava can be eaten in, like, again, it's a cold in potency, but as I've said, in winter your intestine somewhere is hot, so definitely can be eaten in a moderation, I would say, because I have experimented on myself. In the last winter where I consume only Gava for, I don't know, for 30 days or something, because just to experiment, and severely got increase in the Vata and decrease in my, there is a degeneration starts when we use lots of Gava fruit, because it reduces your Shukra Dhatu in the body. So Vata also can be fully ripened, can be eaten by the Vata Pitta Prakriti in the afternoon. Okay, medium size is okay to eat thrice in a week. Okay, so it reduces the Shukra, that you have to understand when you consume the Gava. Okay, so anything in the astringent taste, at last it will reduce the Shukra Dhatu in the body. Okay, so Ayurveda is beautiful because they will show you the benefit of it and also give you the contraindication. So that's where you can use your own mind and mindfully you can choose the things. Yeah. जी। हाँ, तो क्या आंवला भी लास्ट में तो एस्ट्रोजन ही होता है, तो क्या आंवला भी खराब है? आंवला में 5 टेस्ट है,
उसकी डोमिनेंसी होती है सार टेस्ट से, और ये एज अ रसायन है। तो रसायन अलग चीज होती है, फ्रूट अलग चीज हो गए। नहीं, अभी आपने बोला एस्ट्रोजन, जिसमें लास्ट में एस्ट्रोजन टेस्ट आएगा तो वो पर आंवला रसायन है, आंवला रसायन है। यानी आंवला आंवला तो रसायन होते तो शुक्र की तो पुष्टि करेगा ना, वो उसको क्षय नहीं करेगा। क्योंकि हम हम्म, उसको एज अ रसायन खाते तो उसमें एक तो हम घी लेंगे, नहीं तो कुछ ना कुछ लेंगे। उसको हम हम्म, सीधा आंवला एज आंवला पाउडर उसको हम नहीं, हम्म, क्योंकि वैसे गिलोय है, गिलोय एक्सेप्शन है। अगर गिलोय कड़वी होने के बाद शरीर को नरिशमेंट देता है, अगर वही आप नीम खाओगे तो आपको डिजनरेट करेगा बॉडी को। ये ऐसे एक्सेप्शन चीजें होती है। तो अभी अभी उनका ही दिमाग चला है उतना, मैं तो खाली रेफरेंस से आपको बता सकता हूँ। ओके, आई गेस दिस इज इट फॉर टुडे। अगर किसी को और क्वेश्चन है तो आप बता सकते, पूछ सकते हैं। सर, व्हेन डिड यू लर्न ऑल दिस? हाउ डू यू रिमेम्बर एवरीथिंग? सो वेदिका जी, आयुर्वेदा इज लाइफ साइंस, and even I drink this water, you make sure you aware about what you are having it, okay, and how much you are having it. And you not only need close observation, like now it's more than 1,000 consultation. It's been 3.5 years while holding the people and learning from them, and everyday activity what you do, that is what Ayurveda is. So it is not something you learn from the school and implement. It's a understanding learning process, you involve in the process. So that is why Ayurveda, Ayu means your life, Veda is a science. Okay, so it is a life science, you use accordingly. Every day can eat amla, again not only in the season you can eat amla. अच्छा, किससे मसल बनेगा? भी नहीं जमेगी शरीर पे, एक्सरसाइज से। मगर क्या खाने से मसल? तो देखिए, जो है शरीर को पुष्टि। अकेला खाली प्रोटीन हो गया ऐसा कोई नहीं, मैं बताता का ये है, जो फ्रूट जो है क्या? कि हमने देखा है ना रसायन में भी, तो आप अश्वगंधा खा लो, शतावरी खा लो, जो भी खा लो, नहीं मांगेगी तब तक शरीर में मसल बिल्डिंग नहीं होगा। अब धातु की अग्नि नहीं बढ़ेगी तो आपको भूख भी उतनी नहीं। और प्रॉब्लम ये है कि आप अगर ज़्यादा एक्सरसाइज करते हो तो बुढ़ापे पे तो कर नहीं सकते। तो हमने ऐसे कुछ एक्सरसाइजेज डेवलप करे हैं जो मसल बिल्डिंग में भी हेल्प करे और जो शरीर को वात वात भी ना बढ़ाए। ठीक है, तो उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, डेफिनेटली विल कम अप विद दैट एज वेल। तो सिंपली मसल तो बिल्डिंग एक्सरसाइज है। उसका कभी एक ऐसा क्लास तो उस पे कि वो एक्सरसाइज दिखा means हमको देखना है। मेरी अभी 67 है एज। तो, हम्म, तो 67 एज में मैं तो अभी खाली चलने का ही कर एक्सरसाइज, कुछ उसका सब वो व्यायाम बताना चाहिए आप। तो मसल बिल्डिंग भी करें ना, क्योंकि हम्म, मसल हर साल कम कम होते जा रहे हैं ना। डेफिनेटली। बुढ़ापे में वही 800 ग्राम हर ईयर, मतलब लॉस उतना होता है। 1% कम होते जा रहे हैं, हाँ, ऐसा बोलते हैं कि हर हर साल 1% एक्सरसाइज करो या ना करो, कम होते ही जा रहे हैं। मसल कैसे बढ़ाने का? पैटर्न हम देख रहे हैं। जैसे सुबह में भी एक क्वेश्चन आया था, राइट? जो मुद्गल लेके हम जैसे एक्सरसाइज हम पहले केस में कर रहे थे, डेफिनेटली वी आर ट्रेनिंग पीपल फॉर दैट। और लोग जिम ना जाके घर में एक्सरसाइज कर सके विथ रिस्पेक्ट ऑफ वेट लिफ्टिंग। सो मुद्गल एक काफ़ी अच्छा एक ऑप्शन होता है। बट डेफिनेटली आपको हम बताएंगे क्या उसमें कितने मॉडिफिकेशन लाए हैं, कैसे प्रैक्टिस विदाउट इंस्ट्रूमेंट आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो मसल बिल्डिंग। तो कभी कभी बताएंगे आप? अभी वो इट्स एन एक्सपेरिमेंट पीरियड। ओके, वंस इट इज़ वेरी लाइक सक्सेसफुल, वी फाइंड देयर इज़ नो प्रॉब्लम। और काफ़ी उसको वेरीफाई भी करवाना है हमें आयुर्वेदिक डॉक्टरों से, जो योगा भी अभी वी हैव द डॉक्टर्स हु आर ट्रेंड इन योगा। सो डेफिनेटली उनसे भी एक थोड़ा के साथ भी उसकी ट्रायल चल रहा है। तो जैसे ही वो क्लियर हो जाता है, सो विल जस्ट मेक इट लाइव। तो ये क्वेश्चन है, 60 के बाद सूर्य नमस्कार हम कर सकते हैं? सूर्य नमस्कार ये है ना कि जिसके बर्थ चार्ट में सूर्य कम हो, वो कितना भी स्टोन्स पहन ले, कितना भी कुछ कर ले, उसका सूर्य उचका नहीं हो सकता है। सूर्य नमस्कार ही एक ऐसा आसन है जो आपकी डिग्री बढ़ाएगा आपके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में। तो सूर्य नमस्कार कैन बी डन बाय एवरीबॉडी, बट विथ रिस्पेक्ट ऑफ कितने वो कर पा रहे हैं। आंवला एज आई सेड हर रोज हम नहीं खा सकते, पर उसका अगर प्रिपरेशन बदल के आ रहा है, चटनी के फॉर्म में, कभी मुरब्बा के फॉर्म में, तो ऐसे फॉर्म में आप आंवला खा सकते हो। पर जस्ट आंवला एज अ फ्रूट रेगुलर बेसिस नहीं खा सकते। ड्रमस्टिक आर सपोज टू बी गुड फॉर पेन इन द बॉडी, बट इट्स नॉट गुड फॉर द वाता
नो, इट विल रिड्यूस वाता कफा इन द बॉडी। वर्षा जी, आप खा सकते हो ड्रमस्टिक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस, एनीबॉडी सूर्य इज लो इन योर बर्थ चार्ट, देन नथिंग इज बेटर देन सूर्य नमस्कार। मैं बता रहा हूँ ना, कितने स्टोन्स पहन लो आप। यस, नीम कैन बी टेकन इन द स्प्रिंग सीजन। आई डिडंट से एनीथिंग रॉन्ग अबाउट इट। नीम मस्ट बी टेकन इन द स्प्रिंग सीजन। चंद्र नमस्कार कैन बी डन। जिसका इमोशन जिसके ज्यादा जाते हैं वो चंद्र नमस्कार कर सकते हैं, या फिर इमोशनली स्टेबल नहीं है, या फिर इमोशंस है ही नहीं, वो लोग भी चंद्र नमस्कार कर सकते। और जिसका चंद्र खराब है वो भी सूर्य नमस्कार कर सकता है। तो ये एक दूसरे को फिर बैलेंस करते हैं, ठीक है। अमास में जन्म होता है तो क्या उसको सूर्य नमस्कार कुछ फायदा करता है? कैसे, किसमें? अमास में जिसका जन्म हुआ हो, सूर्य भी अमावस्या कर में सकता है। जिसका जन्म हुआ हो, सूर्य नमस्कार ये सब कोई कर सकता है, बट इतना ही आपको ध्यान है जन्म जी। जिसका अमावस्या में जन्म रात को 12 बजे हुआ होता है, वो सूर्य नमस्कार करेगा तो उसका शरीर के ऊपर अच्छा इफेक्ट पड़ेगा कि खराब? वही मैं बोल रहा हूँ, सूर्य नमस्कार अगर एस्ट्रोलॉजिकली देखा जाए, अगर एक यौगिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो ये बेनिफिट सबको करेगा। बट इसमें है कि आप कितना रैपिडली उसके कर रहे हो, ठीक है, उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है, और आपकी प्रकृति क्या है। पित्त वाला उसको धीरे धीरे करना है, कफ फास्ट कर सकता है, वात वाला धीरे धीरे करके मॉडरेशन में कर सकता है विथ लॉन्ग लॉन्ग होल्डिंग। फर्क पड़ता है ना आप कैसे कर रहे हो सूर्य नमस्कार को, ठीक है। आई गेस विथ रिस्पेक्ट ऑफ फ्रूट किसी को क्वेश्चंस है तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इन अगर सिर्फ हम रैंडमली बात करेंगे तो सो दे आर वेरियस एस्पेक्ट टू लर्न और अंडरस्टैंड। विथ रिस्पेक्ट ऑफ फ्रूट, एनीबडी हैव एनी क्वेश्चन? फणस खाने का कैसा है? फणस फनस का भी लाएंगे, फनस का भी, वो तो कब बढ़ाएगा, वात पित्त को कम करेगा, गुरु होता है, पचने में भारी होता है, और उसका बिया, वही भारी होता है। और अपना काजू होता है उसका ऊपर का जो फल खाएंगे तो कैसा है? काजू का ऊपर का फल, काजू, काजू नहीं, हाँ का, काजू के ऊपर फल होता है ना, उगता है, जी। जिसका शराब बनता है ना, वो काजू का ऊपर का फल खाएंगे तो कैसा है? काजू के फल का फल सर देखना पड़ेगा, उसका सूर्य विपाक देखना पड़ेगा। तो काजू नहीं खाने का, काजू के जी ऊपर मैं समझा, का। हाँ, समझा मैं, आपको फ्रूट पूछ रहे हो ना ऊपर का। डेफिनेटली जब और ड्राई फ्रूट्स के बारे में हम बात करेंगे ना, उसको भी लेके आएंगे साथ में। अच्छा, और दूसरा एक आता है, उसको क्या शक्कर टेटी बोलते हैं हम लोग, उसको क्या बोलते हैं मालूम? मेलन, शक्कर टेटी, वो कैसा है शक्कर टेटी? मस्क मेलन, ये मस्क 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 मेलन। वो भी बात ठंडा होता है, गर्म होता है, ठीक है। आई गेस मस्क मेलन के बारे में हमने नहीं लिया है, तरबूज के बारे में भी नहीं लिया, राइट। सो ये हम मे बी नेक्स्ट वीक लेंगे। बाकी तो मे बी देर इज अ सेशन इज पेंडिंग विद आयुर्वेदिक फूड एज अ food science, then on sleep and the sleep. These are the three, things we have to conduct the session like Friday and Saturday, something like that, for 2 days each. Maybe we'll plan from the next week, but these are important topic to understand in, again, Vastu perspective and the Ayurvedic perspective. और Okay. व्यायाम, और व्यायाम व्यायाम भी, आप एक बार एक दिन वो इसके लिए भी अच्छा, ठीक है ना, वो भी करेंगे। मसल मसल बिल्डिंग का व्यायाम का एक दिन रखो। जी जरूर। उसके ऊपर में ट्रायल चल रहा है, और बाकी जो 2 लोग हैं उनके ऊपर भी ट्रायल चल रहा है, हम कर रहे हैं। बिकॉज वात प्रकृति में वही प्रॉब्लम है, वी कैन नॉट गो टू द जिम, बट अगेन द मसल लॉस इज देयर। तो यही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वी आर वर्किंग ऑन दैट। तो जैसे ही, और एंड विथ रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, और जो सिंपल भी हो करने में, योगा से भी हो सकता है मसल बिल्डिंग, ऐसा नहीं है, बट इट इज टाइम कंज्यूमिंग। तो हमें ऐसा कुछ चाहिए जो जल्दी भी हो और वात भी ना बढ़ाए, तो उसके ऊपर ही काम चल रहा है। ओके। तो हम जैसे ही होता है, विल विल टेल यू अबाउट समर फूड। समर फूड, नरेन जी विल डिस्कस दिस इन द मंडे सेशंस। ओके। सो अभी स्प्रिंग खत्म हो जाए, बिफोर मंडे सेशन, बिफोर समर कम्स, विल डेफिनेटली विल गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट टू कंज्यूम इन समर। अभी समर चालू हो गया है इधर तो, नहीं हमारे हुआ है। थाने में तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। सो ये दूधल, इसको बोलेंगे कि जो रात में भी जो अभी ठंड फील कर रहे हो ना आप, ठीक है, ये आपको समर सीजन में नहीं दिखती है, ये स्प्रिंग सीजन है। इसको आप समर मत काउंट करो। लोग भी आम वगैरह लेके आ गए मार्केट में। अभी अभी 37 डिग्री है, अभी फर्स्ट ये तो मार्च को और गर्म 37। होने का है, ये तो 40 के ऊपर जाएगा, तब समर आएगा।
40 41 ऐसे हिट करेगा वो। ओके, अभी समर सीजन आया नहीं है, अब गलती से भी ऐसी चीजें मत खाना जो समर सीजन में खानी होती है। यही लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सीजन में ही 2 ही महीना है स्प्रिंग अभी, और 35 डेज और चलेगा, फिर समर सीजन का ऋतु संधि आएगी, फिर समर सीजन आएगा। ठीक है, तो हम बता देंगे आपको जब समर सीजन आएगा तब। ऑलराइट, सो आई गेस दिस इज इट फॉर टुडे। और एक बात और, जैसे मेरी बात कोई और लोगों से भी हुई थी, ये सीजन, ये पर्टिकुलर ईयर में बॉडी पेन होने वाले हैं, बिकॉज इट इज़ अ सैटर्न ईयर। अगर एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट्स ऑफ व्यू से देखे तो इसमें घबराना नहीं है किसी को। कोई विदाउट एनी रीजन अगर भी बॉडी पेन भी होता है ना, तो किसी को घबराना नहीं है। इट कैन बी बैलेंस विद द हेल्प ऑफ आयुर्वेद, otherwise it will automatically go in next year, coming year. Okay, so that is, I'm a pitta vata 55-year-old age, but I'm weight is 46 47 and losing my muscle mass, autoimmune hypothyroidism. So how to increase my weight and muscle mass? That's what exercises are needed. सिर्फ खा पी के कुछ नहीं होने वाला, धातु की अग्नि नहीं बढ़ेगी, तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं हो सकता है। ओके, so definitely we'll talk on that as well, but we'll need some time, maybe a month. All right, I guess this is it for today. If anybody have any question, please post it in the group. I'll happy to answer that. Okay. मंडे को कितने बजे है आप क्लास? जी, मंडे को एक्चुअली जो हमारे पेशेंट्स लोग होते हैं या फिर क्लाइंट होते हैं, उनके लिए हम रखते हैं, बिकॉज इट नीड्स होल्डिंग एंड ऑब्जर्वेशन। मंडे को काफ़ी थोड़ा उनके हेल्थ के हिसाब से होता है कि बिकॉज दे आर ऑलरेडी कंसल्टेड विद द डॉक्टर्स, तो उस अच्छा, हिसाब से वो हम सेशंस कंडक्ट करते हैं। ओके, बट फ्राइडे सेशन इज फॉर एवरीबडी इन जनरल। ठीक है, सो ठीक है। आई गेस दिस इज इट। Thank you everyone for joining today's session. We'll see you in the next week. Till the time, you can post your questions in the group. I'll really will be happy to answer. Okay, all right, thank you everyone.